Good afternoon, students. Today we will see a new lesson of English. Lesson number 13, unit number 2. Let's wait. Okay. So, this is one of the monologue. Monologue means what? I told you when I taught you the lesson honeybee. Yes, na? So, monologue means the one person is telling something to us. Okay, means one person only talking. There is not reply, there is not any other person with her or him. Okay, so this is one of the one monologue. So in the honeybees lesson, the honeybee speaks, and in this lesson one small girl want to tell us something, want to share things to us. Okay, so let's see the lesson. When things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and lonely. They don't realize how much the people around them love them. It's only when they wait and think properly that they understand it. Let's hear what this girl has to say. Okay, means what? Sometimes what happen? There are so many. There are childrens in our houses. Yes, na. So you are also children. So I think when you heard heard this story, uh, when I explain you this story, that times you realize that yes, this is happening with us also. Okay, so see here, one little girl want to tell something to us, that she feels very sad and lonely. Why? Because she thinks that her family member नॉट लुकिंग टू हर, उसके तरफ देख ही नहीं रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसे इस गर्ल को लग रहा है. और कभी कभी ऐसा ही होता है, अगर आपके घर में आप बड़े हो और आपका एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई होने के बाद क्या होता है कि फैमिली के जो मेंबर्स है उनका ज़्यादातर ध्यान उसके ऊपर जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता है, तो वो ज़्यादा उसकी तरफ देखते हैं. तो फिर आपके मन में आता है कि अभी मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता. ओके, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है. फिर आपको थोड़ा नर्वस फील होता है, आपको थोड़ा लोनली फील होता है, आप दुखी होते हो. यस ना. सो लाइक दैट वन थिंग हैपनिंग विद दिस गर्ल ऑल्सो. सो शी वॉन्ट्स टू टेल अस समथिंग अबाउट हर feelings. Okay, so we will start the lesson. So see, this is the worst day of my life. I am feeling very sad. You may not believe it, but I am the saddest person on this earth. Means this girl is telling that this is the worst day of my life. Worst day means very very bad day in my life. Means this day is very very bad day in my life. I am feeling very bad. Means I feel very bad today. You may not believe it, but I am the saddest person on this earth. ओके, ये छोटी सी बच्ची बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है अब अभी आज कि ये आज का जो दिन है ये मेरे लाइफ का सबसे सबसे ख़राब, सबसे वर्स्ट है ना, बहुत 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 बैड. ओके, ऐसा डे है और मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन मैं इस पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में सबसे सैडेस्ट पर्सन हूँ. ओके, द रीज़न इज़ दैट नो बडी लव्स मी. वाई आई एम वेरी सैड टुडे? वाई आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे? बिकॉज इन माई हाउस, इन माई फैमिली, नो बडी लव्स मी. देखो, ये फीलिंग बहुत बहुत बैड है, बहुत बैड फीलिंग्स आते हैं हमें, बहुत नर्वसनेस होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता. आपको भी कभी लगा होगा. तो ये ऐसा इस लड़की को लग रहा है, इस गर्ल को लग रहा है कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे दीदी या मेरे दादा दादी कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है. ओके, सो देयर फॉर आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. आई हैव अ फैमिली, मम्मी डैडी ग्रैनी एंड अ यंगर सिस्टर. Means how many family members are there in her family? So there are four members are there in her family. Who are they? Her mummy daddy, her granny and a younger sister. Okay, means total 5 members are there. She also, na. So totals
5 मेंबर्स आर देयर। उसके घर में कौन कौन रहते थे उसके फैमिली में? तो उसके मम्मी डैडी, उसकी दादी ग्रैनी यानी दादी, और उसकी यंगर सिस्टर यानी उसकी छोटी बहन। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड द सोफा फॉर द होल डे, ओके, फॉर द लास्ट 8 hours. All right, at least an hour, at least 10 whole minutes, and no one has noticed. Now see here you can see the picture of this girl and look at her face. Her face is very sad, very angry also, and here is one sofa, okay. So she is sitting, okay, she is sitting बिहाइंड दिस सोफा। उस सोफे के पीछे बैठी है वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई मुझे देखे ना, इसीलिए वो इसके पीछे बैठ गई है। कब से पीछे बैठ गई है? आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे। एक दिन हो गया, पूरा एक दिन हो गया मैं इधर बैठी हूँ। उसके बाद वो बोलती है नो एटलीस्ट लास्ट 8 hours, एक दिन नहीं 8 घंटा हुआ होगा। उसके बाद बोले नहीं 8 घंटा नहीं, लेकिन 1 hour तो हुआ होगा, 1 घंटा तो हुआ होगा। 1 घंटा नहीं लेकिन 10 minutes हो गए, पूरे 10 minutes हो गए, लेकिन कोई भी मेरी तरफ देख के मुझे नोटिस नहीं कर रहा है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ओके, मैं लोनली फील कर रही हूँ या मैं नर्वस हूँ। कोई भी घर का मेंबर, ना मेरी मम्मी, ना मेरी डैडी, ना मेरी ग्रैनी, कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। They are all interested only in my sister. Even when she for no reason, they all rush to her, pick her up and give her whatever she wants. She, no one noticed me last 10 minutes, मीन्स 10 मिनट हो गए मैं इधर बैठी हूँ सोफे के नीचे, नर्वस होके, फील बहुत बैड फील करके मैं इधर बैठी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज दे ऑल्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर्स। वो सब लोग किस में इंटरेस्टेड है? मेरी बहन में, क्योंकि वो छोटी है। इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न, नाउ यू नो दैट द स्मॉल चिल्ड्रंस कैन क्राइज एवरी डे, द स्मॉल चिल्ड्रंस कैन क्राइज वेर एवर दे वॉन्ट, वेन एवर दे वॉन्ट, ओके। सो देर इज़ नो रीज़न फॉर देयर क्राइज, ओके। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ रीज़न नहीं चाहिए कि रोने के लिए, कि वह भूख लगी है तो ही रोना चाहिए, या वो कभी भी रो सकते हैं। सो लाइक दैट शी, इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न, दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो घर के फैमिली मेम्बर्स, उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं? आपके घर में क्या होता है सोचो। छोटे बच्चे अगर रो रहे तो पूरी फैमिली उनकी तरफ दौड़ती है, उनको पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। अभी वो छोटे हैं, बोल नहीं सकते, फिर उनको गोद में उठाते हैं, यस ना। पिक हर अप यानी गोद में उठाते, ऊपर उठाते। गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स, उसके बाद वो उंगली करके बोलते मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर वो सब देते हैं। घर के मेंबर्स क्यों देते हैं? ताकि वो चुप हो जाए, ओके। सो लाइक दैट शी गर्ल इज टेलिंग दैट my all family members were interested only in my sister. Even she cries for no reason, then only they rush to her. rush to her यानी के तरफ दौड़ना, ओके। तो उस गर्ल की तरफ या उसकी छोटी बहन की तरफ दौड़ते हैं, जाते हैं। पिक हर अप यानी ऊपर उठाते, एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स, उसको जो चाहिए वो दे देते हैं। I should really go away and live in some interesting places. Now this girl is thinking that I should really go away. मुझे इधर से किधर जाना ही चाहिए। And live in some interesting places. ऐसी जगह पे मुझे रहना है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद वो सोचने लगती है कि मैं किधर जाऊँ। सी, आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट एंड वंडर इन द माउंटेन एंड फॉरेस्ट। हर्मिट मीन्स लोनली फील करना, अ पर्सन हु लिव्स अलोन अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी जनरली फॉर रिलीजियस रीज़न, ओके। हर्मिट यानी एक ही एकांतवास में बैठना या रहना, ओके। फैमिली से दूर रह के, ओके, सोसाइटी से दूर रह के एकांतवास में रहना, उसको हर्मिट बोलते। वंडर इन mountains and forest. Now wander means
वॉक अराउंड एमलेसली विदाउट एनी पर्पस, मतलब ऐसे ही चले जाना। अभी आप स्कूल से जब घर जाते हो तो आपको पता होता है कि नहीं मुझे अभी घर जाना है, तो आपको घर जाने का एम रहता है। बट आप ऐसे ही चल रहे हो कि आपको पता ही नहीं है आपको किधर जाना है, क्यों जाना है, तो उसको बोलते हैं वंडर। ओके, सो आई विल बिकम अ हर्मिट एंड वंडर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। मैं किधर जाऊँगी? माउंटेन्स और फॉरेस्ट में जाऊँगी, जिधर कोई भी नहीं होगा उधर जाऊँगी। आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्रीज, अभी उधर जाके मैं खाऊँगी क्या? तो आई विल ईट द फ्रूट्स ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। Now when you are living in the society, so in your society you have means small children are your friends. But if you are these girls thinking that she will go in the mountains and forest, so in the mountain and forest she will eat the trees, she will eat the fruits of trees and she will make the friends like birds and animals. वो किसको फ्रेंड बना लेगी उधर? बर्ड्स और एनिमल्स उसके फ्रेंड्स होंगे। और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल and live in a desert, means she wants to live, she wants to go in mountain and forest also. Now she wants to go in desert also. So in the desert there have camel, so she want to ride on the camel. At night I will sleep in a tent. Now in the desert there have so many tents are there, so she said that at night means रात होने के बाद मैं किधर सोऊंगी? I will sleep in a टेंट, मैं टेंट में सोऊंगी। और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल ऑन द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। इग्लू मीन्स व्हाट? सो इग्लू इज अ स्मॉल राउंड हाउस मेड अप ऑफ आइस, लिव इन बाय इस्किमोस। इस्किमोस लोग जो है वो इग्लू में रहते हैं। इग्लू यानी एक बर्फ़ का घर होता है, उसमें वो रहते हैं। ओके, आइस का घर होता है। सो शी थिंक्स दैट शी विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल। अभी ये माउंटेन में बोल रही है कि आई विल गो इन अ माउंटेन ऑल्सो, फॉर डेजर्ट ऑल्सो एंड नॉर्थ पोल ऑल्सो। सो आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड अप ऑफ आइस। आई विल मेक फ्रेंड्स विद द पोलर बियर। पोलर बियर यानी उधर नॉर्थ पोल में जो बियर्स होते हैं उनको पोलर बियर बोला जाता है। ओके, ध्रुवीय अस्वल, ध्रुवीय अस्वल यानी उधर जो बियर्स होते हैं उनको पोलर बियर बोला जाता है। सो शी वॉन्ट्स टू गो इन द नॉर्थ पोल ऑल्सो। व्हाट्स दैट? समथिंग। अभी ये सब सोच रही है वो कि मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, लेकिन मैं इधर से तो चली जाऊंगी। ओके, उसके बाद क्या होता है देखो। व्हाट्स दैट? समथिंग सॉफ्ट against my back. Oh, it's baby. Then she feels that something is in her back. उसके पीछे कोई तो है, सॉफ्ट है। समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक, मेरे पीछे कोई नरम नरम सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है, टच हो रहा है। ओ इट्स बेबी। देन शी सी और शी लुक बैक, सो दैट टाइम शी सी दैट there is the baby. Okay, it's baby. What are you doing here, you silly? Go away, don't smile at me. Why do you follow me? Tuss tuss. Is there nobody else in the house to look after me? वो अभी बहुत गुस्सा हो गई है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो उसके पीछे पीछे उस सोफे के पीछे आ गई है क्रॉल करके हुए। ओके, देख सकते हो पिक्चर में कितनी छोटी बहन है उसको। सो she asking to her younger sister, what are you doing here? इधर क्या कर रही है तू? go away, don't smile at me. जा इधर से, मेरी तरफ स्माइल मत कर, मुझे देख के स्माइल मत कर। why do you follow me? मुझे क्यों पीछे पीछे आ गई मेरे? is there nobody else in the house to look after you? अभी उसको पता चला कि ये इतने छोटी होके मेरे पीछे पीछे आ गई, इसकी तरफ किसी का ध्यान है या नहीं। ओके, नोबडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू, कोई भी तेरी तरफ भी ध्यान नहीं है क्या? ऐसा। डोंट कम हियर, यू मे बम्प इनटू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। अभी कभी कभी घर में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि छोटे बच्चे अगर गिर गए तो बड़े के ऊपर आता है कि तूने ही कुछ किया होगा, फिर बड़े बच्चों को स्कोल्डिंग या
डांटते हैं ज़्यादा, स्कोल्ड यानी डांटना, ओके, तो डांटते हैं. सो शी इज़ टेलिंग दैट डोंट कम हियर, मेरी तरफ मत आ. यू मे बम्प इनटू समथिंग, तो इधर उधर किधर गिर जाएगी और सब लोग मुझे स्कोल्ड करेंगे, मुझे डांटेंगे. You may bump into something and I will get all the scolding. Why do you have to do everything that I do? Copycat. Now she is saying to her, why you are doing like me? अभी छोटे बच्चे जो हम करते हैं वही करते हैं. आप उसको क्लैप करके दिखाओ वो भी क्लैप करने लगेंगे, आप उसको हंस के दिखाओ वो भी हंस देंगे. छोटे बच्चों के साथ ये सब करके देखो, वो भी हमें कॉपी करते जाते हैं. Oh, never mind, really. The people in this house, they should look after her better. I am a grown-up girl now. I can manage on my own. But what about this little baby? Come, baby, let's crawl out from here. Oh, never mind. अभी उसको पता चला उस गर्ल को कि अभी ये तो छोटी है, तो इसकी तरफ ही ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है. मैं तो बड़ी हो गई, मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ, उठा सकती हूँ, ओके. लेकिन ये तो छोटी है, इसको हर चीज़ के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी ना किसी की ज़रूरत होगी. तो ओ नेवर माइंड रियली, ये जो मैं सब सोच रही हूँ ये सब गलत है. द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर. घर के जो सदस्य हैं, घर में जो सब हैं, ग्रैनी है, डैडी, मम्मी डैडी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्ल की, ये छोटी लड़की के ऊपर ध्यान देना चाहिए. आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, मैं तो अभी बड़ी हो गई हूँ. ग्रोन अप यानी बड़ी होना, मैं तो अभी बड़ी हो गई हूँ. आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी? अभी देखो आपके घर में आपके अगर छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आपको पता होगा कि वो लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते. उनको पानी चाहिए, वो पानी नहीं पी सकते. उनको खाने के लिए चाहिए, खाना नहीं खा सकते. या वो अगर बैठ भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं, तो उनको वो अगर कोशिश भी करेंगे बैठने की तो गिर जाएंगे, ओके. तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हो, आप तो अपना खुद का कुछ कर सकते हो. कम बेबी लेट्स क्राउल आउट फ्रॉम हियर. और उसके बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर के जो मेंबर्स हैं उनका सही था कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेरी सिस्टर पे देना चाहिए, क्योंकि वो छोटी है, ओके. और वो अपनी बहन को लेके जाती है. व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी. तभी भी अभी भी इसके मन में वही है कि मैं माउंटेन चली जाऊंगी, मैं डेजर्ट में चली जाऊंगी, मैं फॉरेस्ट में चली जाऊंगी, मैं नॉर्थ पोल पे जाऊंगी, ओके. सो दैट टाइम्स व्हेन आई गो अवे, जब मैं जाऊंगी तब मैं तुझे भी आई विल टेक विथ यू, आई विल टेक यू विथ मी. मैं मेरे साथ तुझे भी लेके जाऊंगी. एंड यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे वोंट इवन guess what the matter is with you. I really can't go away when you are so small. Let's wait till you are a little older. अभी भी इसके मन में वो जाने का जो आया है मन में विचार, वो गया नहीं. वो बोल रही है कि तू जब बड़ी हो जाएगी तभी हम जाएंगे, ओके. बिकॉज अभी तू जाएगी, मेरे साथ चलेगी, और तू अगर रोएगी तो तेरी हालत मैं गेस भी नहीं कर सकती. सो व्हेन यू विल ग्रो अप, दैट टाइम वी विल go away from here, okay. So this is the one of this small one monologue. I think most of the students of you realize that yes, this is happening with us also. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा होगा कि नहीं ये हमारे साथ भी हुआ है, okay. So very interesting monologue is there. I hope you understand it.